Dear students, let us now start the methods of purification of organic compounds. There are several methods to purify organic compounds. First method is crystallization. It involves the dissolution of the impure organic compound in a suitable selected solvent. The solvent should be such that when it is cold, it should dissolve the organic compounds but should not dissolve the impurities. When it is hot, it should dissolve organic compound, but when it is cold, it should relieve that organic compound. So the suitable solvent is selected first of all, and then this impure organic compound is dissolved in that solvent. After dissolution, the impurities which are not soluble in that solvent, they are removed by the filtration. The filtrate so obtained is now crystallized by taking it in a china dish and heated it over a burner, keeping a wire gauge just below it. So this will involve the concentration of the filtrate. This is our china dish. This is tripod. And this mixture is heated with a burner. Now the solvent goes off, evaporates, leaving behind a concentrated liquid which will be called as mother liquor. This liquor, when kept for some time on cooling, it will separate the crystals of the organic compound. So crystallization involves the dissolution of the impure organic compound in suitable selected solvent. The solvent should be stable to hydrolysis, should not show any chemical reaction with the organic compound, and it should relieve that organic compound on cooling, and it should dissolve that on heating. And the impure compound, after dissolution, that is impurities which remain undissolved, they are separated by filtration. The liquid so obtained is called as filtrate. It is heated in a china dish over a burner by keeping a wire gauge just below the china dish, and when liquid evaporates, the crystallization point is checked. We'll dip a rod in this solution and we'll blow air above it. If a solid start depositing on the rod, we'll see that crystallization point has come. We'll stop heating, and then china dish is kept separately for some time. You will see that concentrated mother liquor which is left after heating, it will start generating the crystals of the organic compound. So now the crystals are filtered again. They are dried by keeping in the folds of the filter paper. After drying, it is seen whether they are colored or colorless. If they are having some color, they are again purified by dissolving these crystals in the solvent and then added some charcoal on heating. The liquid is again filtered. The filtrate will give you the pure crystals of the organic compound. Then we have second method, that is fractional crystallization. Fractional crystallization is used to separate the mixture of two solids. ऐसे सॉलिड्स का दो सॉलिड्स का मिक्सचर हमने सेपरेट करना है जिनकी सॉल्युबिलिटी एक सॉल्वेंट में अलग अलग है, तो इस मिक्सचर को सूटेबल सिलेक्टेड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लिया जाता है. उसके बाद इम्प्योरिटीज को फिल्ट्रेशन करके उसी तरीके से बाहर निकाल दिया जाता है, और इस तरह से जो फिल्ट्रेट बचती है उसको उसी तरह चाइना डिश में डालकर कंसंट्रेट किया जाता है, हीट किया जाता है. व्हेन सॉल्वेंट गोज ऑफ, लिविंग बिहाइंड द मदर लिक्विड, द कंसंट्रेटेड लिक्विड. जब कंसंट्रेटेड लिक्विड को थोड़ी देर कूल डाउन करते हैं तो वो सॉलिड पहले सेपरेट आउट होता है जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो उसके क्रिस्टल पहले बन जाते हैं. फर्स्ट क्रॉप ऑफ द क्रिस्टल्स ऑफ दैट सब्सटेंस इज टेकन आउट बाय फिल्ट्रेशन. इट इज ड्राइड एंड प्यूरिफाइड. Later on, the mother liquid gives the second crop of the crystals of the other organic compound. They are also separated and then they are again purified. So this is a fractional crystallization where the mixture of two solids, they are separated. Then we have third method, that is sublimation. Sublimation we have already studied at unit 1. It is the phenomena in which a solid on heating directly changes into vapors.
अगर हम सॉलिड को हीट करें इम्प्योर सॉलिड को, then it will changing into the vapors, and these vapors on cooling they give back your solid. So this is sublimation. What is done in sublimation? We take the solid, impure solid in a china dish and keep an inverted funnel above it. इसके ऊपर एक inverted funnel रख दी जाती है by having a cotton plug in its stem. इसके stem में एक cotton का plug एक डाट बना के लगा दी जाती है और इस मिक्सचर को उसी तरह से ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर और वायर गॉज के ऊपर रख के we will start heating this mixture. और जब ये मिक्सचर को हम गर्म करेंगे the sublimatable solid that will vaporize and these vapor will be collected in the inverted funnel. Later on this funnel is taken out of this apparatus and solid is scratched out of the stem of the funnel as well as on the from the walls of this funnel. Benzoic acid and naphthalene, they are sublimizable solid, they are separated, they are purified by this method of sublimation. Then we have the fourth technique that is called as distillation. हिंदी में इसको आसवन कहते हैं, डिस्टिलेशन. दिस मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई दोज लिक्विड्स. उन लिक्विड्स को प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है जिनमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है और उनका बॉइलिंग पॉइंट ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है. तो इसमें हम इम्प्योर लिक्विड को आरबी फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क में ले लेते हैं. जैसे ये आरबी फ्लास्क है, इसमें इम्प्योर लिक्विड आपने ले लेनी है और उसको फिर आपने वही ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रख के उसको बर्नर के द्वारा हीट किया जाएगा. और यहाँ पर आपने एक थर्मोमीटर लगा देना है जो आपको उसके लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आइडिया देगा. दिस इज टी थर्मोमीटर. और यहाँ पे एक रिफ्लक्स कंडेंसर लगाया जाता है. ग्लास की ट्यूब होती है बेटा, उसके चारों ओर एक और कवरिंग होती है और ये पतली सी ग्लास की ट्यूब जिसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड के वेपर जो है वो गुजरते हैं. इसके चारों ओर एक और लिक्विड बह रहा होता है, दैट इज वाटर, जो एक साइड से एंटर होता है. यहाँ से आपने एंटर करना है वाटर को और यहाँ से वाटर की बाहर एलिमिनेशन होती रहती है. पर्पज इस वाटर का जो बाहर फ्लो कर रहा है कैपिलरी ट्यूब के, ये जो वाटर है इट विल कीप इट कूल और जो वेपर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के यहाँ पर आ रहे होंगे उनको वेपराइज करेगा. और यहाँ पे हमने एक रिसीवर, एक फ्लास्क रखा हुआ है जिसके अंदर ऑर्गेनिक लिक्विड, प्योर ऑर्गेनिक लिक्विड गिरेगा. तो इम्प्योर लिक्विड इट इज हीटेड इन आरबी फ्लास्क, गोल पेंजे की फ्लास्क में इसको कह सकते हैं. इसमें इसको गर्म किया जाता है. When liquid vaporizes, these vapor at its boiling point, जो थर्मोमीटर से उसका पता लग जाता है. These vapors on passing through reflux condenser, इसको reflux condenser कहते हैं, जो वेपर्स को ठंडा करके लिक्विड में बदलने की ताकत रखता है. रिफ्लेक्स कंडेंसर से जब वेपर्स गुजरते हैं they get condensed to give you pure liquid. जो impurities है they remain behind in the RB flask. This is distillation. Then we have fifth technique that is called as fractional distillation. टुकड़ों का distillation. This method is used to separate the mixture of two liquids whose boiling point differ by 30 to 40 Kelvin. जिनके boiling point में लगभग 30 से 40 Kelvin का फर्क होता है, उन liquids को हम इससे separate करते हैं. For example, we take the mixture of benzene and toluene whose boiling point differ by 30 to 40 Kelvin. The mixture is taken in a RB flask which is fitted with a fractionating column. उसमें एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आपने लगा देना है. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का रोल ये है, इसमें बहुत सारी बल्ब्यूलर ग्रोथ होती है, बल्ब की तरह की ग्रोथ है इसकी ट्यूब के अंदर, ताकि जो वेपर्स हैं दो लिक्विड्स के जब वो वहाँ पर चलें, ऊपर चलें उस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, तो उस लिक्विड के वेपर जल्दी ही कंडेंस हो जाए जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम था, क्योंकि वेपर स्टेट में उनके पास ज़्यादा एनर्जी नहीं थी. तो इस तरह से वो जो है आपके पास पहले जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को वेपर पास नहीं कर सकते. दे विल कूल डाउन इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एंड विल फॉल एट द इन द राउंड बॉटम फ्लास्क. बट द लिक्विड हुज बॉइलिंग पॉइंट हैज कम
इसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आया, उसके वेपर सारी बाधाओं को, जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में बल्ब्यूलर ग्रोथ है, उनको क्रॉस कर जाएंगे और वो सारे के सारे पहले बाहर आ जाएंगे। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले बाहर आ जाएगी, क्योंकि पहले वही टेम्परेचर आएगा हीट करने पे, और जब वो सारी की सारी बाहर निकल जाएगी उसके बाद आरवी फ्लास्क में टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, और जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है फिर वो बाहर निकलना आरंभ होगी। इस तरह से फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को यूज़ करके हम दो लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे वही है, उसी तरीके से एक आपको आरवी फ्लास्क लेना है बेटा, इसमें एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आपने लगाना है। ऐसा कॉलम है जिसमें बल्ब्यूलर ग्रोथ थोड़े होते हैं, जो कि बाधा रेस दो लिक्विड्स के बीच में लगवाते हैं, और ये इस तरह से आगे जाके ये वही रिफ्लक्स कंडेंसर के साथ लग जाएगा, जैसे कि अभी हमने बनाया था। इसमें चारों तरफ पानी फ्लो करता रहता है ताकि जो भी लिक्विड आए उसके यहाँ पर वेपर्स होंगे। वेपर जो है यहाँ पे आप टेम्परेचर लगा सकते हैं, थर्मामीटर, जो कि लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को बताएगा। इसको उसी तरह से ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखना है, उसके ऊपर एक जाली रख देते हैं जिसको वायर गेज कहते हैं। ये आपके पास ट्राइपॉड स्टैंड है, यहाँ पे आपने इसको लिक्विड को बर्नर के द्वारा गर्म करना है। तो इस तरीके से दो लिक्विड है इसमें, लिक्विड ए और लिक्विड बी। लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट इज लेस, विच इज लेस वोलेटाइल, मोर वोलेटाइल, जल्दी वेपर बना सकती है। बी का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, लेस वोलेटाइल। तो जब आप गर्म करेंगे वेपर्स तो दोनों लिक्विड के बनेंगे, चाहे किसी का बॉइलिंग पॉइंट आया है या नहीं आया, और दोनों वेपर्स जो है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ये बल्बुलर ग्रोथ वाला, इसमें चल रही है ऊपर। जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पहले आ गया, एक आ गया मान लीजिए, तो एक में एनर्जी ज्यादा होगी, वो सभी बाधाओं को क्रॉस करके यहाँ से आकर यहाँ कंडेंस होके दे विल गेट कलेक्टेड इन द रिसीवर। रिसीवर के अंदर वो इकट्ठे हो जाएंगे और यहाँ से हमने उनको इकट्ठा करना है। जब सारा का सारा लिक्विड इधर आ जाएगा तो अब टेम्परेचर यहाँ बढ़ना स्टार्ट होगा, जिसमें दूसरे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई है, तो उसके वेपर बनने आरंभ होंगे। जैसे बेंजीन टोलुइन हम ले रहे हैं, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट लगभग 350 है और टोलुइन का 373 है, तो पहले बेंजीन आएगा बाहर, उसके बाद 373 टेम्परेचर इसमें होगा और उस वक्त फिर टोलुइन बाहर आना स्टार्ट होगा। दोनों को अलग अलग रिसीवर में इकट्ठा करते हैं और बाद में हम उनको अलग अलग प्यूरिफिकेशन में सब्जेक्ट करते हैं। फिर हमारे पास सिक्स्थ टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड एज वैक्यूम डिस्टिलेशन, और इसको ये भी कहते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। This method is used to purify those liquid which get decomposed at their actual boiling point, जो अपने actual boiling point पे decompose कर जाते हैं। तो डिकम्पोज लिक्विड को मार्केट में कौन खरीदेगा, हमारे से कोई नहीं लेगा, दैट विल बी ऑफ नो यूज। उसकी प्रॉपर्टी भी हम नहीं स्टडी कर सकते, लैब में भी यूज नहीं हो सकता है। तो ऐसे लिक्विड के सरफेस के ऊपर वी रिड्यूस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय पंपिंग आउट द एयर फ्रॉम इट्स सरफेस। वैक्यूम पंप लगा के हम वहाँ उसकी सरफेस पे वेपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर देते हैं। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा तो लिक्विड के वेपर जल्दी ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर अपने वेपर प्रेशर बना लेंगे और लिक्विड जो है वो अपने निर्धारित बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही उबल जाएगा। तो इस मेथड में हम ग्लिसरीन को प्यूरिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टीम डिस्टिलेशन नहीं लग सकता, क्योंकि ग्लिसरीन इज वाटर सोल्यूबल, तो स्टीम डिस्टिलेशन नहीं लगता इसमें। हम आपको बताएं क्यों नहीं लगता। तो इस विधि में हमने क्या करना है, ग्लिसरीन को क्या करना है, हमने वैक्यूम डिस्टिलेशन में सब्जेक्ट करना है। इसी तरह का ऑपरेटर्स है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज नॉट देयर, पर हम ऊपर एक वैक्यूम पंप लगा देते हैं जो अंदर से एयर को विड्रॉ करके लिक्विड की सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लो कर देता है, और लिक्विड जो है दैट विल स्टार्ट बॉइलिंग बिफोर इट्स एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट।
तो अपने एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट से पहले लिक्विड उबलने लग जाएगा और इस तरह से इम्प्योरिटीज पीछे रह जाएंगी और लिक्विड विल कम आउट. सो दिस मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई ग्लिसरॉल एंड केन जूस. गन्ने के जूस को भी हम प्यूरिफाई कर सकते हैं. They are water soluble, so such liquids cannot be purified by steam distillation. जहाँ पर स्टीम के साथ ऑर्गेनिक लिक्विड के वेपर्स को मिला के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर बनाया जाता था और लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे से पहले ही उबलना आरंभ होती है. तो नेक्स्ट मेथड जो 7th मेथड है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज स्टीम डिस्टिलेशन. This method is used for purification of those liquids which also get decomposed at their actual boiling point, but they are insoluble in water. वो steam के साथ mix नहीं होती. तो हम क्या करते हैं, एक steam generator अलग से लेते हैं और उसको हम steam generator को एक organic liquid के vapor के साथ mix करते हैं और जब organic vapors का और जो स्टीम का कलेक्टिव वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो ऑर्गेनिक लिक्विड उबलना शुरू कर देता है अपने निर्धारित बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही. तो इस तरह से दोनों के कलेक्टिव वेपर रिफ्लक्स कंडेंसर में से गुजरते हैं स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक में और ये दोनों ही कंडेंस होकर रिसीवर के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और इस तरह से रिसीवर से फिर उनको डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन के द्वारा एक सेपरेटिंग फनल में डाला जाता है और कुछ देर के लिए शेक करने के बाद उस सेपरेटिंग फनल को रख दिया जाता है वेयर टू डिफरेंट लेयर्स. एक ऑर्गेनिक लिक्विड की, एक स्टीम या पानी की अलग अलग लेयर बनती है. उनको हम फिर बाहर निकाल लेते हैं बाय डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन. तो इस मेथड में हम लिक्विड जो प्यूरिफाई करते हैं दैट इज एनिलीन. Aniline can be purified by this method. Mixture of orthoparanitrophenol that can also be separated by this method. तो इसमें जो आपके पास लिक्विड डिस्टिल्ड आउट है उसका वेट निकालना हो तो फार्मूला है W1 upon W2 it is equal to P1 multiplied by 18 upon P2 multiplied by M. Here W1 is the weight of water या स्टीम जो बाहर आई थी वाटर का रूप ले रही है. W2 is the weight of organic liquid. P1 vapor pressure of water. P2 vapor pressure of organic liquid. 18 molecular mass of water. M molecular mass of organic liquid. तो इस तरह से we can calculate the weight of organic liquid which is purified by a steam distillation method. Then we have the 8th method that is called as differential extraction. We have already studied it. This method is used to separate oils from the seed. Seed से oils को separate करने के लिए यूज किया जा सकता है. जब क्या करते हैं सीड्स को हम क्रश कर लेते हैं, क्रश करने के बाद उनको सूटेबल सॉल्वेंट के साथ मिक्स किया जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के द्वारा जो कि ऑयल को अपने में डिसॉल्व कर लेता है और इस तरह से वो अगर एक्वस उसमें कुछ पानी भी है तो पानी के साथ ऑर्गेनिक लिक्विड या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिक्स नहीं होते, उनके दोनों के अलग अलग लेयर बन जाते हैं और इस तरह से डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन को हम अलग कर सकते हैं. डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन से ऑर्गेनिक लिक्विड को एक्वस सॉल्यूशन से अलग कर सकते हैं बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल. Then we have 9th technique that is chromatography. Chrome is for color. Graphy is for analysis. कलर के आधार पे एनालिसिस करना, कंपोनेंट्स को सेपरेट करना, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राफी. इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमिनन ऑफ एडजॉर्प्शन. Adsorption is the phenomenon in which the particles of a substance get concentrated on the surface of other substance. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी सब्सटेंस के पार्टिकल they get concentrated on the surface of other substance. This is called as adsorption. तो इसमें हम क्या करते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी कई तरह की है बट एट 11th लेवल वी विल स्टडी कॉलम क्रोमेटोग्राफी. वैसे ये और भी तरह की है जैसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, TLC इसको कहते हैं, ये ब्लड की
टेस्टिंग में भी यूज़ होती है। इसी तरह पेपर क्रोमेटोग्राफी है, उसमें थिन स्ट्रिप यूज़ करते हैं पेपर की और उस पे कंपोनेंट्स को अलग करते हैं। बट लेट अस स्टडी कॉलम क्रोमेटोग्राफी एट दिस लेवल। वी हैव ए ग्लास, ह्यूज ग्लास ट्यूब जस्ट लाइक ब्यूरेट। ब्यूरेट की तरह का एक ट्यूब है जिसमें यहाँ पर एक स्टॉपर लगा हुआ है। इसमें हम एक पेस्ट भर देते हैं एल्यूमिनिया का और सिलिका जेल का। इट इज ए पेस्ट ऑफ Al2O3 XH2O, 2 वाटर भी हो सकता है, या सिलिका जेल। ये पेस्ट इसमें भर दिया जाता है विच विल एक्ट एज ए स्टेशनरी फेज। ये एक स्टेशनरी फेज की तरह काम करेगा, स्थिर फेज है। और इसके ऊपर आपने ऑर्गेनिक मिक्सचर डाल देना है सूटेबल सॉल्वेंट में, उसको डिजॉल्व के मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड A + B + C ये इसमें डाल दिया जाता है। अब इस कॉलम में ये ABC इस कॉलम में नीचे मूव करना स्टार्ट करते हैं। एक कंपोनेंट A जो है हो सकता है वो ज़्यादा नीचे की तरफ, वो कम एब्जॉर्ब हो इसमें और वो नीचे की तरफ आ जाए। उसके बाद B कंपोनेंट थोड़ा हो सकता है अलग रहे। उसके बाद C कंपोनेंट है जो कि अलग रहे। इन तीनों कंपोनेंट्स की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमने मिक्सचर लिया था सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर, जब उस मिक्सचर को इस स्टेशनरी फेज के ऊपर डाला गया एक सॉल्वेंट के अंदर घोल के, जो कि मोबाइल फेज कहलाता है, मूव करने वाला फेज, तो इस तरह से वो कंपोनेंट्स को लेकर अपने साथ चलता है। और ये एड्सॉर्बेंट जिसकी सतह पे इन कंपोनेंट्स ने अलग अलग रेट पे मूव करना है, इस एड्सॉर्बेंट में जब वो गुजरते हैं तो कुछ कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल जो है इस स्टेशनरी फेज के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं और वो सबसे नीचे इकट्ठे होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल ऊपर ही रह जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल उससे भी ऊपर रहते हैं। तो इस तरह से तीनों कंपोनेंट इस मिक्सचर के A, B, C सेपरेट लेयर बनाते हैं। सबसे पहले जैसे A लेयर आ गई है, फिर B आ गई है, फिर C आ गई है, तो ये आपके पास अलग अलग जोन्स बन जाते हैं। उसके बाद वही सूटेबल सेलेक्टेड सॉल्वेंट जिसमें इन कंपोनेंट को घोला गया था वो और ज़्यादा मात्रा में इसको यहाँ से डाला जाता है, जिसको इल्यूएंट कहते हैं। और इस प्रोसेस को इल्यूजन कहते हैं। जो कंपोनेंट अलग अलग लेयर बना गया उनको वहाँ से अलग करवाना, मुक्त करवाना। तो वो सॉल्वेंट जो सबसे पहले कंपोनेंट नीचे पहुँच गया उसको डिजॉल्व करके सबसे पहले नीचे लेके आएगा। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट, उसके बाद तीसरा कंपोनेंट। इन तीनों कंपोनेंट को हम अलग अलग इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद उनकी फर्दर प्यूरिफिकेशन करके हम उसको यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो दीज वर द मेथड्स हाउ टू प्यूरिफाई the organic compounds. Now there are few small questions. For example, who discovered chromatography? It was discovered by a scientist Sweat, TSWETT। उसने 1903 में इसको डिस्कवर किया और इस टेक्निक के द्वारा प्लांट्स के, फ्लावर्स के डिफरेंट कलर कंपोनेंट को उसने अलग किया। उसके बाद व्हाट इज वैक्यूम डिस्टिलेशन, किस तरह के लिक्विड्स को प्यूरिफाई करने के लिए हम वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। ऐसे लिक्विड्स जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज कर जाते हैं और वाटर में सॉल्यूबल है, दे कैन नॉट बी प्यूरिफाइड बाय मींस ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन, दे आर यूज्ड टू प्यूरिफाइड बाय वैक्यूम डिस्टिलेशन। फिर स्टीम डिस्टिलेशन भी डिकम्पोजेबल लिक्विड्स के लिए यूज़ किया जाता है, बट दीज लिक्विड्स आर वाटर इनसॉल्यूबल, जैसे एनिलीन है, ऑल्सो पैरानाइट्रोफिनॉल है। तो ये वाटर में घुलते नहीं हैं। जब कलेक्टिव वेपर प्रेशर स्टीम का और ऑर्गेनिक लिक्विड का बराबर हो जाता है, दे स्टार्ट बॉइलिंग बिफोर देयर एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट विदाउट डिकम्पोजिशन, एंड दीज वेपर्स ऑन कंडेंसेशन विल गिव अस द प्योर लिक्विड व्हिच आर सेपरेटेड बाय मींस ऑफ डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन. So these are the ways how we purify the organic compound. Tomorrow we'll take the quantitative analysis of element present in the organic compound, and followed by the qualitative analysis to know the percentage of the elements in the organic compound, followed by empirical and molecular formula calculation. Thank you very much.